جو عورتیں ہر وقت ٹینشن لیتی ہیں، ہر بات کو دل پر لگا لیتی ہیں اور راتوں کو صرف خاموشی میں سوچتی ہی رہتی ہیں، ایسی عورتیں میری یہ 7 باتیں یاد رکھ لیں، کیونکہ کبھی کبھی انسان مسائل سے نہیں تھکتا بلکہ اپنے ہی خیالوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میری لاڈلی بیٹیوں، کیا آپ ان عورتوں میں سے ہیں جو دن بھر مسکراتی تو رہتی ہیں لیکن دل کے اندر ایک خاموش جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں؟ کیا آپ ہر چھوٹی بات کو دل پر لے لیتی ہیں؟ کیا کسی کے ایک جملے، ایک رویے یا ایک نظر سے آپ کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے؟ کیا رات کو سب کے سو جانے کے بعد آپ کی آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی ہے اور سوچوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج کی یہ باتیں صرف آپ کے لیے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو زندگی کے مسائل اتنا نہیں تھکاتے جتنا اس کا اپنا ذہن اسے تھکا دیتا ہے۔ کئی عورتیں ایسی ہیں جو ہر وقت فکر کرتی ہیں، ہر وقت کسی آنے والی مشکل کا خوف دل میں رکھتی ہیں، ہر بات کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کا دل، ان کی ہمت اور ان کا سکون کمزور پڑنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر پریشانی کا علاج صرف حالات بدلنے میں نہیں ہوتا بلکہ کچھ سچی باتیں انسان کے دل کے اندر روشنی پیدا کر دیتی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ 7 ایسی باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہیں اگر آپ اپنے دل میں بسا لیں، اپنی سوچ کا حصہ بنا لیں اور اپنی زندگی میں جگہ دے دیں تو انشاءاللہ بہت ساری ذہنی الجھنیں، بے چینی اور بے وجہ کی ٹینشن کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ آخر تک ضرور سنیے گا۔ جو عورتیں ہر وقت ٹینشن لیتی ہیں، میری یہ 7 باتیں ضرور یاد رکھیں۔ پہلی بات، کبھی کبھی انسان کے خلاف سب سے بڑی جنگ دنیا نہیں لڑ رہی ہوتی بلکہ اس کے اپنے خیال اس کے اندر ایک ایسی عدالت لگا دیتے ہیں جہاں ہر لمحہ مقدمہ چلتا رہتا ہے، فیصلے ہوتے رہتے ہیں اور دل سزا بھگتتا رہتا ہے۔ بہت سی عورتیں زندگی کے کسی مسئلے سے اتنی نہیں تھکتی جتنا وہ اس مسئلے کے بارے میں مسلسل سوچ سوچ کر تھک جاتی ہیں۔ ایک بات ہوئی اور ذہن نے اس کے 100 مطلب نکال لیے۔ کسی نے جواب دیر سے دیا اور دل نے پوری کہانی بنا لی۔ کسی نے رویہ بدل لیا اور ذہن نے آنے والے کئی سالوں کی فکر شروع کر دی۔ یوں ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن کے اندر ایک طوفان بن جاتا ہے جو سکون کے ہر چراغ کو بجھا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، سوچنا عقل کی نشانی ہے لیکن حد سے زیادہ سوچنا اکثر دل کی قید بن جاتا ہے۔ اوور تھنکنگ ایسا چور ہے جو خاموشی سے انسان کی خوشیاں چرا لیتا ہے۔ یہ آپ کو حال میں جینے نہیں دیتا اور مستقبل تک پہنچنے نہیں دیتا۔ یہ آپ کو ان مسئلوں پر بھی رلانے لگتا ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ آپ بستر پر لیٹی ہوتی ہیں لیکن ذہن کل کی فکر، پرسوں کے خدشے اور آنے والے مہینوں کے اندیشوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ شیطان کی ایک بڑی چال یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو حقیقت سے زیادہ خیالوں میں الجھا دیتا ہے۔ وہ آپ کو بار بار ایک ہی بات سوچنے پر مجبور کرتا ہے، یہاں تک کہ دل تھک جاتا ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور انسان اپنی اصل طاقت بھولنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات مسئلہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں مسلسل سوچنا اسے پہاڑ بنا دیتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، آپ کی زندگی کے کتنے خوف ایسے تھے جو کبھی سچ ہی نہیں ہوئے، کتنی فکر ایسی تھی جن پر آپ نے راتوں کی نیند قربان کی مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ سب محض وہم تھے۔ اوور تھنکنگ انسان کو حقیقت سے زیادہ اپنے تخیل کا قیدی بنا دیتی ہے۔ نبی کریم نے ہمیں توکل، امید اور عمل کا راستہ سکھایا ہے، نہ کہ بے مقصد فکروں میں ڈوبے رہنے کا۔ مومن وہ ہے جو تدبیر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ ہر مسئلے کو ذہن میں بار بار گھمانا، ہر منظر کو 100 بار دہرانا، ہر ممکن برے انجام کا تصور کرنا دل کو کمزور اور روح کو تھکا دیتا ہے۔ لہٰذا آج آپ سے ایک وعدہ کریں، ہر خیال کو اپنے دل میں گھر بنانے کی اجازت مت دیں، ہر فکر کو اپنی نیند لوٹنے کا حق مت دیں۔ بعض معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی سب سے بڑی ذہنی آزادی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر سوچ ضروری نہیں ہوتی اور ہر فکر آپ کی توجہ کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات سکون اس میں نہیں ہوتا کہ آپ ہر سوال کا جواب ڈھونڈ لیں بلکہ سکون اس میں ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوال اللہ کے سپرد کر دیں۔ دوسری بات، بعض درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں زبان بیان نہیں کر سکتی، کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں گرتے اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہونٹوں سے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلتی ہیں۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے دکھ کسی کو نہیں بتاتی، وہ گھر والوں کے سامنے مضبوط بن جاتی ہیں، بچوں کے سامنے مسکرا دیتی ہیں، لوگوں کے درمیان خود کو سنبھال لیتی ہیں، لیکن جب رات کی تنہائی اترتی ہے نا تو ان کے دل کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی انہیں صرف اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ وہ خاموش رہتی ہیں مگر ان کے اندر ایک شور برپا ہوتا ہے۔ وہ کسی سے شکایت نہیں کرتی مگر ان کا دل مسلسل رب کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی انہی عورتوں میں سے ہیں تو آج یہ بات اپنے دل پر نقش کر لیجئے کہ آپ کی خاموشی اللہ کے نزدیک خاموش نہیں ہے، آپ کے آنسو اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہیں، آپ کی وہ دعائیں جو کبھی الفاظ نہیں بن سکیں وہ بھی عرش تک پہنچتی ہیں۔ دنیا شاید آپ کی تکلیف کو نہ سمجھے، لوگ شاید آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھ لیں، لیکن اللہ آپ کے دل کے ان زخموں کو بھی جانتا ہے جن کا ذکر آپ نے کبھی کسی سے نہیں کیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان دروازوں پر دستک دیتا ہے تو جواب ملے یا نہ ملے،
लेकिन जब दिल अल्लाह के दरवाजे पर झुकता है तो वहाँ खामोशी भी दुआ बन जाती है और आंसू भी इल्तिजा बन जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूंगा। शैतान बार बार आपके दिल में ये ख्याल डालता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, अल्लाह शायद तुम्हें भूल गया है, इतना मांगा मगर कुछ नहीं मिला। लेकिन याद रखें, अल्लाह की ताखीर, अल्लाह की बेखबरी नहीं होती। बड़ज़ औक़ात वो दुआ फौरन कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह उसके बदले में आपके लिए कुछ बड़ा, कुछ बेहतर और कुछ ज्यादा खूबसूरत लिख रहा होता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन अल्लाह के नज़दीक ज्यादा महबूब है। उस ताकत का एक राज ये भी है कि मोमिन कभी अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ता। वो जानता है कि मेरा रब सुन रहा है, देख रहा है और मुनासिब वक्त पर जवाब भी देगा। लिहाजा अगली बार जब आप तन्हाई में रोएं, जब दिल बोझिल हो, जब सीना गम से भर जाए, तो ये मत सोचें कि आप अकेली हैं। उस लम्हे अपने दिल से कहिए, मेरा रब मेरी खामोशियों की ज़बान जानता है और वो मेरी हर आह को सुन रहा है। यही यकीन दिल को बिखरने से बचाता है और यही यकीन अंधेरी रातों में उम्मीद का चिराग बन जाता है। तीसरी बात, कभी कभी इंसान अपनी मौजूदा तकलीफ को इतना बड़ा समझ लेता है कि उसे लगने लगता है जैसे ये दुख अब सारी जिंदगी उसके साथ ही रहेगा। जब परेशानियां मुसलसल दरवाजा खटखटाती हैं तो दिल ये मानने लगता है कि शायद अब खुशी का रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। ये दुनिया तब्दीली का नाम है। यहाँ ना खुशी हमेशा रहती है और ना गम, ना आसानी मुस्तकिल है और ना मुश्किल। जो औरत आज आंसुओं में डूबी हुई है, मुमकिन है कुछ महीनों बाद वही औरत खुशियों के फूल समेट रही हो। जो दिल आज बोझ महसूस कर रहा है, कल वही दिल सुकून से भर सकता है। वक्त एक जैसा नहीं रहता, मौसम एक जैसे नहीं रहते, तो फिर हालात हमेशा एक जैसे कैसे रह सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, तो बेशक दुश्मनी के साथ आसानी है, ये सिर्फ तसल्ली नहीं बल्कि अल्लाह का वादा है और जिसका वादा अल्लाह करे उसमें कभी झूठ नहीं हो सकता। बड़ज़ औरतें बरसों बाद पीछे मुड़कर देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं कि जिन बातों पर वो रातों को रोया करती थीं, आज वो बातें उनकी जिंदगी में कोई हैसियत ही नहीं रखती। इसलिए अपने दिल को ये यकीन दिलाएं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये परेशानी भी मुस्तकिल नहीं, ये दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। आपकी जिंदगी का अगला बाब शायद पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। और याद रखें, जब बंदा उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता तो अल्लाह ऐसे रास्ते पैदा कर देता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। चौथी बात, जिंदगी की बहुत सी थकन कामों की ज्यादती से नहीं आती, बल्कि उस कोशिश से आती है कि इंसान उन चीजों को भी अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहता है जो उसके इख्तियार में ही नहीं होती। बहुत सी औरतें अनजाने में एक ऐसी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेती हैं जो दरअसल उनकी ही नहीं। वो चाहती हैं कि सब लोग उनसे खुश रहें, हर रिश्ता उनकी मर्जी के मुताबिक चले, हर मसला फौरन हल हो जाए, हर शख्स उनकी नीयत को समझे और जिंदगी का हर मोड़ उनकी मंसूबाबंदी के मुताबिक आगे बढ़े। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो खुद को कसूरवार समझने लगती हैं, खुद को मुलामत करती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी दबाव की जंजीरों में जकड़ जाती हैं। याद रखें, आप एक इंसान हैं, तकदीर नहीं। आप कोशिश कर सकती हैं लेकिन नतीजे पैदा नहीं कर सकती। आप मोहब्बत दे सकती हैं लेकिन किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने पर मजबूर नहीं कर सकती। आप नसीहत कर सकती हैं लेकिन किसी की सोच बदलने की मालिक नहीं है। आप दुआ कर सकती हैं लेकिन हर मामले का वक्त और फैसला अल्लाह के हाथ में है। कितनी औरतें अपनी जिंदगी का सुकून सिर्फ इसलिए खो देती हैं क्योंकि वो दूसरों के रवैये को कंट्रोल करना चाहती हैं। कोई उनकी कदर क्यों नहीं करता, फलां शख्स ऐसा क्यों बोलता है, फला रिश्ता वैसा क्यों नहीं जैसा मैं चाहती हूँ। ये सवाल रफ्ता रफ्ता दिल के अंदर एक ऐसा बोझ पैदा कर देती हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर खाने लगता है। हकीकत ये है कि दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें बदलने की ताकत हमारे पास नहीं होती। समंदर की लहरों को कोई नहीं रोक सकता, हवा की सिमत को कोई नहीं मोड़ सकता और लोगों के दिलों पर भी किसी इंसान की हुकूमत नहीं होती। इसी तरह जिंदगी के बहुत से मामलात ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से बदलते हैं। जब इंसान हर चीज को काबू में रखने की जिद छोड़ देता है ना, तो उसके दिल से एक अजीब बोझ उतर जाता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, ऐसी चीज की हर्स रखो जो तुम्हें फायदा दे, अल्लाह से मदद मांगो और आजिज न बनो। इस हदीस में एक अजीम उसूल छुपा हुआ है, जो आपके इख्तियार में है उसके लिए कोशिश करें और जो आपके इख्तियार से बाहर है उसे अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अपनी जिंदगी को एक बाग समझें। आपका काम बीज बोना, पानी देना और देखभाल करना है। फूल कब खिलेगा, कितना खिलेगा और किस रंग का होगा, ये बागबान हकीकी यानी अल्लाह के इख्तियार में है। अगर आप हर वक्त फूल को खींचकर खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो खिलेगा नहीं बल्कि मुरझा जाएगा। लिहाजा आज से अपने दिल को ये इजाजत दे दें कि वो हर मामले का बोझ अपने सर पर न ले। कुछ मामलात दुआ के सुपुर्द कर दीजिए, कुछ वक्त के हवाले कर दीजिए और कुछ अल्लाह की हिकमत पर छोड़ दीजिए। यकीन जानिए, जिस दिन आपने हर चीज को कंट्रोल करने की जंग छोड़ दी, उसी दिन आपके दिल का आधा बोझ खुद ब खुद उतर जाएगा। पांचवी बात, कभी कभी सबसे ज्यादा थका हुआ वो शख्स होता है जो सबके सामने सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है। लोग उसकी मुस्कुराहट देखती हैं लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे छुपी हुई थकन को नहीं देख पाते। बहुत सी औरतें सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीती रहती हैं
वो घर की फिक्र करती हैं, बच्चों की फिक्र करती हैं, शोहर की ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं, वालिदैन की खिदमत करती हैं, रिश्तों को संभालती हैं और हर टूटते हुए ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस पूरी दौड़ में वो एक शख्सियत को भूल जाती हैं और वो शख्सियत खुद उनकी अपनी होती है। वो सबके जख्मों पर मरहम रखती हैं मगर अपने दिल के जख्मों को नजरअंदाज करती रहती हैं। जरा सोचिए, अगर एक मशीन मुसलसल चलती रहे, उसे आराम न मिले, न मरम्मत का वक्त मिले, न उसे बंद किया जाए, तो एक दिन वो जवाब दे देती है। फिर आप तो मशीन भी नहीं है, आपका दिल है, जज्बात हैं, एहसासात हैं, आंसू हैं, कमजोरियां हैं। आप पत्थर नहीं हैं कि हर बोझ उठा लें और फिर कभी थके भी ना। आप लोहा नहीं हैं कि हर ज़रब बर्दाश्त कर लें और कभी न टूटें। आप एक इंसान हैं और इंसान को आराम, मोहब्बत, तवज्जो और सुकून की ज़रूरत होती है। बड़ज़ औरतें खुद को इतना नज़रअंदाज कर देती हैं कि उन्हें अपने आराम पर भी जुर्म महसूस होने लगता है। अगर कुछ लम्हे अपने लिए निकाल लें तो उन्हें लगता है कि शायद वो कोई गलत काम कर रही है। अगर अपनी सेहत का ख्याल रखें तो उन्हें खुदगर्जी महसूस होने लगती है। हालांकि हकीकत ये है कि जो खुद अंदर से खाली हो जाए वो दूसरों को भी ज्यादा देर सहारा नहीं दे सकता। याद रखें, हर वक्त मजबूत रहना जरूरी नहीं, हर वक्त मुस्कुराना जरूरी नहीं, हर वक्त सब कुछ संभालना भी जरूरी नहीं। कभी कभी दिल को रोने की इजाजत देना भी जरूरी होता है, कभी कभी खुद को माफ करना भी जरूरी होता है, कभी कभी कुछ लम्हों के लिए दुनिया के शोर से दूर हो जाना भी जरूरी होता है। नबी करीम कै की जिंदगी में भी हमें तवाजुन का दर्स मिलता है। इबादत भी है, मेहनत भी है, जिम्मेदारी भी है, लेकिन जिस्म और रूह के हुकूक भी है। इस्लाम इंसान को खुद को तबाह करने का नहीं बल्कि खुद को संभालने का दर्स देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका दिल भी आपकी अमानत है। अगर आप पूरी दुनिया का ख्याल रखें लेकिन अपने दिल को मुसलसल थकाती रहें तो ये भी एक नाइंसाफी है। अपने आप को ये हक दीजिए कि कभी आराम कर सकें, कभी खामोश बैठ सकें, कभी कभी गहरी सांस ले सकें, कभी अपने रब से दिल की बात कर सकें, क्योंकि थका हुआ दिल सिर्फ नींद से नहीं संभलता। बड़ज़ औकात वो मोहब्बत, तवज्जो, रहमत और अपने रब के साथ कुछ पर सुकून लम्हों से दोबारा जिंदा हो जाता है। छठी बात, कभी कभी हालात इस कदर गहरे अंधेरे में धकेल देते हैं कि इंसान को लगने लगता है जैसे अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। दिल बार बार यही कहता है कि शायद इस बार मसला बहुत बड़ा है, शायद इस बार मैं नहीं संभल सकूंगी, शायद इस बार जिंदगी मुझे शिकस्त दे देगी। लेकिन एक लम्हे में एक बात याद करना जरूरी है और वो ये कि आप आज जहाँ खड़ी हैं वहाँ तक भी अल्लाह ही आपको पहुँचा कर लाया है। जरा कुछ लम्हों के लिए माजी की तरफ पलट कर देखिए, क्या ये पहली परेशानी है जो आपकी जिंदगी में आई है? क्या इससे पहले कभी कोई ऐसी रात नहीं आई थी जिसमें आपको लगा हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आपने रो रो कर अल्लाह से मदद मांगी हो और फिर कुछ अरसे बाद वही मसला खत्म हो गया हो? यकीनन हुआ होगा, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां उसे लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं, लेकिन फिर अल्लाह ऐसी जगह से मदद भेज देता है जहां से इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। शैतान की सबसे खतरनाक चाल ये है कि वो इंसान को उसके हाल के अंधेरे में इतना उलझा देता है कि वो अपने माजी की अल्लाह वाली मदद को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि कितनी बार अल्लाह ने उसे टूटने से बचाया, कितनी बार ऐसे दरवाजे खोले जो बंद नजर आ रहे थे, कितनी बार ऐसी आसानियां पैदा की जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब समंदर के किनारे पहुंचे तो पीछे फिरजन का लश्कर था और सामने समंदर था। जाहिरी निगाह से देखा जाए तो बचने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने वहां भी रास्ता पैदा कर दिया। जहां इंसानी अक्ल सिर्फ इख्तिताम देख रही थी, समंदर फट गया और नजात का रास्ता बन गया। ये वाकया सिर्फ तारीख नहीं बल्कि हर परेशान दिल के लिए एक पैगाम है कि जब अल्लाह चाहे तो समंदर भी रास्ता बन जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके काम में आसानी पैदा फरमा देगा और उसे वहाँ से रोजी देगा जहाँ उसका गुमान भी ना हो। महतरम नाजरीन, मेरी प्यारी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, अगर आज आपका दिल बोझिल है, अगर हालात आपकी समझ से बाहर हैं, अगर रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, तो अपने दिल को ये याद दिलाएं कि जिस रब ने आपको पहले सैकड़ों मुश्किलों से निकाला था वही आज भी जिंदा है, वो आज भी कादिर है, वो आज भी आपकी फरियाद सुन रहा है। अल्लाह की कुदरत पर वक्त का असर नहीं पड़ता, हालात की सख्ती उसकी रहमत को नहीं रोक सकती और मुश्किलों की दीवारें उसकी ताकत के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। इसलिए खौफ की बजाय यकीन को जगा दीजिए, मायूसी की बजाय उम्मीद को थाम लीजिए और बार बार अपने दिल से कहिए, मेरा रब पहले भी मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है और कल भी मेरे लिए बेहतरीन फैसला करेगा। सातवीं बात, कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के हर मसले का हल दुनिया में तलाश करता रहता है, लेकिन जिस दरवाजे के पीछे असल सुकून रखा होता है वो दरवाजा खटखटाना ही भूल जाता है। वो लोगों से उम्मीद लगाता है, हालात से उम्मीद लगाता है, वक्त से तवक्को बांधता है, लेकिन दिल की वो खाली जगह फिर भी खाली ही रहती है, क्योंकि दिल को वो चीज नहीं भर सकती जो खुद फना होने
वाली हो। दिल को ताकत सिर्फ उस जात से मिलती है जो हमेशा बाकी रहने वाली है। बहुत सी औरतें ये समझती हैं कि अगर उनके मसाइल खत्म हो जाएं तो उन्हें सुकून मिल जाएगा, अगर फलां शख्स बदल जाए तो दिल मुतमईन हो जाएगा, अगर हालात बेहतर हो जाएं तो खुशी वापस आ जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया के हालात बदलने से पहले दिल का अल्लाह से जुड़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब दिल अल्लाह के करीब हो जाता है तो मसाइल खत्म नहीं होते, लेकिन मसलों का बोझ हल्का महसूस होने लगता है। जरा गौर कीजिए, एक कश्ती अगर समंदर के बीच में हो और उसका लंगर मजबूत हो तो तूफान उसे हिला तो सकता है, डुबो नहीं सकता। इसी तरह अल्लाह से जुड़ा हुआ दिल परेशानियों से गुजरता जरूर है मगर टूटता नहीं। आजमाइशें आती हैं, आंसू भी आते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक ऐसा यकीन जिंदा होता है जो इंसान को बिखरने नहीं देता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिलों को चैन मिलता है। गौर करें, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि माल से दिल मुतमईन होते हैं, या लोगों की तारीफ से दिल मुतमईन होते हैं, या हालात के बेहतर होने से दिल मुतमईन होते हैं, बल्कि साफ ऐलान फरमा दिया कि हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। बड़ज औरतें घंटों परेशानियों के बारे में सोचती रहती हैं, लेकिन कुछ मिनट अल्लाह से बात नहीं करती। वो अपने दुख लोगों को बार बार सुनाती, लेकिन सजदे में अपने रब के सामने दिल नहीं खोलती। हालांकि वो रब ऐसा है जो सिर्फ अल्फाज नहीं सुनता, बल्कि दिल की धड़कनों में छुपी हुई दुआएं भी सुन लेता है। जब बंदा तहज्जुद की खामोशी में, फज्र की रोशनी में या सजदे की आजिज़ी में अल्लाह के करीब होता है तो उसके दिल के अंदर एक नई ताकत पैदा होती है, ऐसी ताकत जो दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम का ने फरमाया, ताकतवर मोमिन अल्लाह के नजदीक कमजोर मोमिन से बेहतर है और ज्यादा महबूब है, अगरचे दोनों में भलाई है। ऐसी चीज की हर्ष रखो जो तुम्हें फायदा दे, अल्लाह से मदद मांगो और आजिज न बनो। और अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो ये ना कहो अगर मैं ऐसा करती तो ऐसा हो जाता, बल्कि ये कहो कि अल्लाह ने यही मुकद्दर कर दिया था और जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ। ये हदीस हमें सिखाती है कि मोमिन की असल ताकत उसके जिस्म में नहीं बल्कि उसके यकीन में होती है, और यकीन उस वक्त मजबूत होता है जब बंदा अपने रब के करीब होता है। महतरम नाजरीन, मेरी प्यारी बहनों और मेरी लाडली बेटियों, अगर आप वाकई अपनी टेंशन, अपने खौफ, अपनी बेचैनी और अपनी अंदरूनी थकन से नजात चाहती हैं तो सिर्फ हालात बदलने का इंतजार मत कीजिए, अपने रब से ताल्लुक मजबूत कीजिए। नमाज को बोझ नहीं, मुलाकात समझिए, कुरान को रस्म नहीं, दिल का इलाज समझिए, दुआ को आदत नहीं, अपनी ताकत समझिए। क्योंकि जब इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है तो जिंदगी के तूफान खत्म नहीं होते, लेकिन उन तूफानों से गुजरने के लिए एक मजबूत दिल जरूर मिल जाता है।